Hello everyone, welcome back to my channel CS students and hope you are going good. Students, right now I am here on the website of the Institute of Chartered Accountants of India and I am going to show you an important announcement with respect to the frequently asked questions which are issued by the Institute of Chartered Accountants of India. So I am going to show you on the website of ICI. So here important announcements and I click here. So you can see on the screen frequently asked questions with respect to May and November 2020 examinations which are issued by the Institute of Chartered Accountants of India 15th of अगस्त आप दे सकते हैं एंड मैं आपको इसके अंदर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या दिया है इसमें इंस्टीट्यूट ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में फर्स्ट इसमें क्वेरी है द वेदर द स्टूडेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर द मई 2020 एग्जाम्स बी रिक्वायर्ड टू फाइल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नवंबर 2020 अफ्रेश यानी कि ये कहते हैं इंस्टीट्यूट्स में कि जो इन्होंने मई 2020 एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखा था उसने क्या उनको रिक्वायर्ड होगा फाइल करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नवंबर 2020 अब फ्रेश एक फ्रेश तरीके से द आंसर इज यस आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स में द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कोर्स who had applied for May 2020 examinations will be required to fill form for November 2020 afresh on opening of window for the same. The students are allowed to change the groups as well as center for appreciations in November 2020 examinations. यानी कि अपीयरेंस इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस मतलब अपीयर होने के लिए आप अपने सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं ये भी इंस्टीट्यूट ने आपको रेस्पॉन्स में बताया है सेकंड क्वेरी है सेकंड जो आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है वेदर स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू चेंज हिज एग्जाम सेंटर फ्रॉम द वन फाइल्ड फॉर मई जुलाई 2020 एग्जाम्स यानी कि स्टूडेंट्स जिन्होंने जो चेंज कर रखे थे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वो जो चेंज कराना चाहते थे क्या वो एक जो मई 2020 एग्जाम्स के लिए भर रखे थे क्या उसको चेंज करने के लिए अलाउ किया जा रहा है द आंसर इज यस स्टूडेंट्स हैज टू फाइल द एग्जाम्स फ्रॉम अफ्रेश फ्रॉम नवंबर 2020 एग्जाम्स वेयर इन ही कैन ऑप्ट फॉर द एग्जाम सेंटर फॉर ऑफ हिज चॉइस यानी कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली जो भी एग्जाम सेंटर बैठा है और वो उसके हिसाब से वो चूज आउट कर सकता है तीसरा FAQ है whether a students who had applied for May 2020 examination for one groups can he apply for both groups or change the group in November 2020 exams what will be the fees payable देखो लिखता है yes students has to file exam from afresh for November 2020 exams accordingly the students who had applied for one group for May 2020 exams can apply for both groups or change the groups for November 2020 exams by paying differential fees it means that इसका मतलब ये आता है कि अगर आपने एक ग्रुप भरा था उसके लिए आपने फीस दे रखी थी तो वो फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी बाकी जो रिमेनिंग आपके ग्रुप है सेकंड अगर उसके लिए भी आप बहुत ग्रुप के लिए अपीयर होते हैं तो उसके लिए आपको जो सेकंड ग्रुप का फीस है वो आपको देना पड़ेगा फोर्थ FAQ है whether the fee paid for May July 2020 exams be adjusted or whether the students has to pay the full fees this time again and get refund of the fees paid earlier the students response में जो लिखा है the students will get auto calculation of the fees he has to pay while filing exams form for November 20 exams after he enters his details. If he is again opting to give single group exam as he did for May July 2020 exams then he is not required to pay any further fees. However, if students now opt to appear for both groups in November 2020 exams, while earlier he had opted for only single group in May-July 2020 exams, he will be required to pay differential fees only. वही बात रखी है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर आपने मई अटेम्प्ट के लिए अगर एक ग्रुप्स भरा था तो उसके लिए आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी अगर बोथ के लिए जाते हैं then you can pay the differential amount as well. Fifth FAQ है whether students who had failed to file exemptions available in May 2020 exams can he claim the exemption in November 2020 exams ये कहते हैं कि क्या अगर एक स्टूडेंट्स अगर फेल्ड हो जाता है तो फाइल करने में एग्जाम एग्जाम्पशंस अवेलेबल जो उसको एग्जाम्पशंस ऑप्ट की थी मई 2020 एग्जाम्स के लिए क्या वो क्लेम कर सकता है अपने एग्जाम्पशंस नवंबर 20 यानी कि कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन दिया इंस्टीट्यूट ने और बोला गया यस ऑल एग्जाम्पशंस ड्यू टू स्टूडेंट्स फॉर मई 2020 एग्जामिनेशंस आर कैरी फॉरवर्ड तो कैरी फॉरवर्ड आपको मिल जाएगा नवंबर 2020 के लिए ये भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है इसके बाद सिक्स्थ FAQ है व्हेन विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स
यानी कि इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स के लिए कौन सा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा? लास्ट अटेम्प्ट फॉर द इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स इज एक्सटेंडेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, यानी कि अभी इंस्टीट्यूट ने मई 2020 के लिए लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे ड्यू किया हुआ था, बाकी अब इसको एक्सटेंड करके नवंबर 2020 के लिए दे दिया है इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स। अब इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक तरह से फाइनल के लिए, जो कि एक तरह से अभी तक सस्पेंस में था कि फाइनल वालों का जो ओल्ड कोर्स में है स्टूडेंट्स उनके लिए क्या रहेगा, तो इन्होंने यहाँ पे भी क्लैरिफाई कर दिया कि लास्ट अटेम्प्ट फॉर द फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए लास्ट अटेम्प्ट फॉर द फाइनल ओल्ड कोर्स एक्सटेंड टू मई 2021 एग्जामिनेशंस। This is the very good news for the final old course students because इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी दी है लास्ट जो फाइनल कोर्स ओल्ड कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको नवंबर 2020, जो कि एक एक्सपेक्टेशन थी इंस्टीट्यूट से कि नवंबर 2020 एग्जामिनेशन लास्ट रहेगा ओल्ड कोर्स वालों के लिए, लेकिन अब उन्होंने मई 2021 एग्जामिनेशंस को एक्सटेंड करवा दिया है, यानी कि एक अटेम्प्ट और आपको चांस दिया है इंस्टीट्यूट ने। 8th FAQ है, will the examination be held in December or November? Next examination including the merge May 2020 examination will be held in November। ये स्टूडेंट सबसे बड़ी है, अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो डिलेमा चल रहा था वो ये चल रहा था कि क्या नवंबर का भी एग्जामिनेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्लैरिफाई किया विल द एग्जामिनेशंस बी हेल्ड इन द नवंबर दिसंबर, तो उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द मर्ज मई 2020 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर, यानी कि इंस्टीट्यूट इज नाउ कमिटेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस इन मई 2020, राइट। Ninth FAQ है, if a student has cleared his one group in old schemes can he migrate to final new scheme in November 2020? यानी कि वो कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है अपना वन ग्रुप इन ओल्ड स्कीम में, क्या वो माइग्रेट का मतलब टू फाइनल न्यू स्कीम में नवंबर 20 में जा सकता है क्या? तो मतलब अगर उसने ओल्ड स्कीम में अगर एक ग्रुप क्लियर करा है तो क्या वो अपनी न्यू स्कीम में कन्वर्ट करा सकता है? द आंसर इज यस, द स्टूडेंट्स में कन्वर्ट फॉर फाइनल न्यू कोर्स बिफोर फाइलिंग ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस फॉर्म ही विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द बैलेंस ग्रुप, यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर एक ग्रुप आपने ओल्ड में दे दिया था तो आप नेक्स्ट ग्रुप अपना न्यू स्कीम में दे सकते हैं। 10th FAQ है, due to COVID-19 restrictions and impact students are not able to travel to nearest examination center, यानी कि ट्रैवलिंग को लेकर के यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपका पॉसिबल नहीं होता तो स्टे एट द सिटी ऑफ द सेंटर इज आल्सो नॉट पॉसिबल, वेदर इट इज बीइंग प्लान। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कहा कि क्या वो प्लान कर सकता है कि टू ओपन न्यू एग्जामिनेशन सेंटर एट स्टेट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर प्रेजेंटली नो सेंटर इज देयर टू अवॉइड हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि while considering the ongoing COVID-19 pandemic for the well-being of the students and member and to migrate their hardship as to proactive measures for the benefit and welfare of the students and member, it has been decided to open 193, 192 in India and one in overseas additional examination centers subject to the appropriate examination center being used. Candidates offer themselves to appear in the new examination center. For the details of 193 additional examination center, please refer to the announcement of 4th August 2020, which has been posted on the institute website of the following www.ici.org। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10th FAQ में यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि जो 192 आपको सेंटर यहाँ पे एडिशनल बनाए गए हैं उसमें ये इंस्टीट्यूट चेक जो भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जो कि नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर में पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करना, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर उसमें उस एडिशनल जो सेंटर एग्जामिनेशन बनाए गए हैं उसमें अगर उसका फॉल करता है तो देन यू कैन चेक इट। इसके बाद है आपका 11th FAQ, will ICI cancel exam center if sufficient number of candidates do not offer themselves to appear from newly added exam center? तो यहाँ पे बोलते हैं नो ICI will not cancel any of the announced examination center, यानी कि जो अनाउंस कर रखे एग्जाम सेंटर्स वो बिल्कुल फाइनल रहेंगे, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। इसके बाद है 12th आपका FAQ, whether the students of final new course be allowed to change the elective subject while filing form for नवंबर 2020 एग्जाम। यहाँ पे स्टूडेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो स्टूडेंट फाइनल न्यू कोर्स के अलाउ हैं, न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कि चेंज द इलेक्टिव सब्जेक्ट व्हाइल फाइलिंग फॉर्म फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, यानी कि उनको क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट में चेंजेस करने का क्या परमिशन दिया जाएगा? द आंसर इज यस, द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू चेंज इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द पेपर 6 व्हाइल फाइलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, ये भी क्लैरिफाई स्टूडेंट ने कर दिया है। इसके बाद 13th FAQ है, वेदर स्टूडेंट्स बी अलाउड टू चेंज हिज मीडियम, यानी कि मीडियम को लेकर के भी इंस्टीट्यूट ने कर दिया मीडियम लैंग्वेज व्हाइल फाइलिंग फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। द आंसर इज यस, since the student is required to file fresh form for November 2020 exam, he is allowed to change the
इज अलाउड टू चेंज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर अपीयरेंस एग्जाम, यानी कि उसको अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने लैंग्वेज जिस एग्जामिनेशन हिंदी मोड में देना चाहता है हिंदी में दे सकता है, अदरवाइज वो इंग्लिश में भी दे सकता है, ये भी अलाउंस दे दिया है। इसके बाद 14th FAQ, whether students will get another chance to change his examination center after 1 month of the filing the new exams form if the pandemic situation changes of his area। यानी कि वो कहते हैं कि अगर पैंडेमिक में कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, जो हमारा कोविड-19 सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंग अगर पैंडेमिक में जो कोई सिचुएशन चेंज होती है, तो क्या स्टूडेंट्स को अनदर चांस मिलेगा अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कराने के लिए आफ्टर 1 month ऑफ फाइलिंग द न्यू एग्जाम फॉर्म। तो आंसर है यस, द स्टूडेंट्स विल गेट वन मोर चांस ऑफ चेंजिंग द एग्जाम सेंटर्स थ्रू करेक्शन विंडो व्हिच विल बी ओपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर 2020। ये भी क्लैरिफाई इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। इसके बाद 15th FAQ, द मई 2020 एग्जामिनेशंस हैव बीन कैंसल्ड। May 2020 examinations have been cancelled and merged with November 20 examinations. Would pass out date be deemed to be passed in May 2020? ये इंस्टीट्यूट ने लिखा है, since the May 2020 examinations have been cancelled and merged with November 20 examination pass out month, तो डेट एंड ईयर विल बी नवंबर। यानी कि अगर मई का एग्जाम तो ऑब्वियसली बात है ड्यू टू द पेंडिंग सिचुएशंस अगर कोविड-19 it is to be cancelled in May 2020 एग्जामिनेशन, तो कैंसल्ड हुआ था, तो अकॉर्डिंगली फिर क्या हुआ था कि नवंबर एग्जाम्स जो हमारा था वो आपका अब जो एग्जाम्स माना जाएगा वो नवंबर 2020 का ही माना जाएगा, नॉट इंस्टेड ऑफ मई 2020 examinations. In case of students, next query है FAQ, in case of students has remaining 2 papers to complete his second group of IPCE and his attempt in due May 2021 examination, and that student is supposed to clear his 2 paper in November 2020. In that case, how can appear in May 2021, because date of registration for final is December 2020, but the result of November 20 examination may be declared in the month of Jan or February। यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपने जो बचे हुए 2 पेपर है वो कंप्लीट करता है अपना रिमेनिंग, मतलब इसको बताता हूँ आपको, इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ उसकी। इन केस ऑफ स्टूडेंट हैज रिमेनिंग 2 पेपर्स टू कंप्लीट, ये कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स जिसके पास 2 पेपर्स हैं अभी कंप्लीट करने को अपने सेकंड ग्रुप इन आईपीसी, एंड उसका अटेम्प्ट अगर ड्यू होता है मई 2021 में, और वो स्टूडेंट सपोज टू क्लियर कर लेता है अपने 2 पेपर इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, तो इन दैट केस हाउ कैन ही अपीयर इन मई 2020, बिकॉज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो फाइनल है, फाइनल की रजिस्ट्रेशन डेट है वो दिसंबर 20 है, बट रिजल्ट ऑफ नवंबर का वो आपका जैन या फेब के मिड में आ सकता है। तो उसके लिए स्टूडेंट ने बोला है द स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप ऑफ IPCE is required to registered in final course। यानी कि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। CA फाइनल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्लियरिंग ऑफ बोथ ग्रुप ऑफ IPCC ही तभी आप एलिजिबल होंगे। सेवंथ एंड द लास्ट FAQ is whether students can apply in group second under old course and in group 1 under the new course simultaneously in November 2020 examination। ये कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है ग्रुप सेकंड के लिए अंडर ओल्ड कोर्स एंड इन ग्रुप 1 अंडर द न्यू कोर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि क्या ग्रुप सेकंड को ओल्ड कोर्स में और ग्रुप 1 को न्यू कोर्स में साइमल्टेनियसली नवंबर 20 में दे सकता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट परमिसिबल। द स्टूडेंट्स कैन बी अप्लाई ईदर इन ओल्ड कोर्स और द न्यू कोर्स, या तो उसको ओल्ड कोर्स में डालना पड़ेगा या फिर न्यू कोर्स में डालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स होप ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल करेगी, और ये आपको मैंने इन डेप्थ जाकर के एक FAQ आपको डिस्कस किया है, एंड होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्स टू मैक्स शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर सके। तो होप स्टूडेंट्स get in touch with my channel CA students, and hope you are going good, and best wishes for the examinations। Thanks a lot।